हेलो। हेलो। Good afternoon. गुड Gupta. आफ्टरनून सर। और मैं सर। बढ़िया। यस सर, बढ़िया। सो आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। सो व्यूअर्स जान जाएंगे लाइक। सो So, good afternoon, everyone. Myself, Jyoti Prakash Singh. I'm currently an associate professor in the Department of Computer Science and Engineering, National Institute of Technology, Patna, an institute of national importance in India. So, myself and my team mainly works in the natural processing domain, natural language processing domain, and today we are going to discuss one of my research. Uh, so, या सो 1 minute, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शेयर इसके 1 minute। सो वन माय स्क्रीन इज विजिबल सर, लाइक योर पेपर। just a minute. No, the screen is not visible. लेट मी चेक वन। नेक्स्ट 1 minute, let me just Should I share the paper? uh, one minute sir, like Okay, okay. sir, you can share your from your side, like I have to like reopen my Zoom uh, meeting again, like Okay. yeah. So, is it visible? Right now no. Yes, right. Yeah, it's visible. It's gone. um, Hmm? right Not now. visible? Yeah, yes sir, yes. Visible, no. Yes sir, visible, your screen is visible. Okay, okay. Yeah. So, sir, at first question is this, like, सर, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसा है कि हम इस पर काम करें, लाइक नेचुरल लोकेशन रेफरेंस लैंग्वेज के ऊपर। फिर यहाँ से हम चालू करेंगे। ये Hmm. ये सर। So, please repeat. Actually, सर, I couldn't hear. मतलब मेरा कहना यह था कि आपने ये स्टार्ट जैसे कैसे किया कि मुझे लाइक लोकेशन बेस पर करना है काम, लाइक ट्विटर वाले, क्योंकि डिजास्टर बहुत सारे होते हैं लाइक, और Right, शायद, और जब तक पहुंच पाता है हेल्प तब तक बहुत चीज डिस्ट्रॉय हो चुका होता है लाइक। सो right. ये So, in fact, when we started this work, then we started first finding out event detection. So there were a lot of work in the literature, and we also started with that. Let us first find out from a huge volume of tweets. Can we find out all those informations or those tweets which are referring to certain disaster? And mainly, we were concerned with the tweets which are asking for help. ये So सर। our in fact, first target was to find out all the tweets which are asking for help, because you also know that in a huge volume or the speed at which tweets are coming, it is even not possible for a lot of human being to diagnosis or basically identify all the tweets where ये people are asking for help. ये So that was the first motivation we started with, and then we found that when we collected some of those tweets where people were talking about their health, then obviously, if even if we can identify a person asking for help, where to send that particular help, how to mobilize the humanitarian organizations, government organizations, NGOs, that this is the place where you need to really help this person. ये सर। For that, we started with, okay, not only it's the health related tweet, but also the location in those tweets. In ओके। fact, in Twitter, there are several places where people write their locations. Like one of the field is the place name, and then from where the tweets are. Even in some cases, if it is geotag, then geotag location also it automatically comes.
Yes, sir. Geotag was in fact the most authentic one. Everyone thought, we also thought initially. Then Hmm. we analyzed and we found that around 3 to 4% of tweets were having geotags. Yes, sir. And especially during disaster, people normally in those scenarios, if their geotag is not already on, they are hardly going to on switch on that. Yes, sir. Yes, sir. So the volume was very less in geotag. Yes. Then we Uh, thought of, in this yes, paper, also this thing is described, I think. So yes, yeah, although that's it's in a very less amount, but that was the problem. Then we explored all other possibilities, and then finally we come to the conclusion that it's the tweet itself, because when people are asking for help, they are also writing their location, yes, sir. where they are really stuck. Yeah, yeah. So how to find out those texts which specifies that person's location from that tweet? So that's how we came to this idea, and we selected this topic for the research work. Yes, sir. So then can you like explain the what is going in this paper? And I have some question in between, and as I can. So, Yeah, yes. so when, as I told that, when we decided that okay, we will find out the location names, then we, in fact, we did one of our earlier work on the English language, because most of the tweets were written in English. Yeah. But later on, we found that no, it's not in a country like India, where multiple languages are in prevalent, and especially in northern India, Hindi is the prevalent one and now considered to be the national language of India. Yes, sir. So we started thinking or exploring further, and we found that people write their are basically asking for help in code That switch language. Like sometimes they start with English, then come to Hindi. Sometimes they start with Hindi. In between, there are certain English words. So some cases the place name is written in Hindi. In some other cases, the place name is written in English, and hence it becomes imperative that a single language system will not be sufficient enough. So yes, that's why that idea of bilinguality came into that. In fact, we had a plan of further extending this work to other languages or more than two languages. language. Yes. That was the first part. That was the motivation one. Then coming to the technicality of this one. So once we thought of bilinguality, one Yes. of the major problem was at that particular time there was no data set available. Yeah. Yeah. So Yes. for this research, nothing was available. So first of all, we started finding out the data. So we started searching. Sorry, we started searching. You can see here in this paper also. We Yeah. started searching for location names. Like we got something like this. Yeah. Yes. भारत में आजकल फेक न्यूज जंगल की तरह, and then this table you can see. धुले जिले के शाहपुर गांव के पास केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारण भीषण आग की चपेट में 10 लोगों की मौत. So fire, धुले, and then there is a link. And so One question I have in this, like, totally, this is like if any person or the tweet person tweets Hindi English mixed language, like in yes, single tweet. So also Mhm. this model can work on that, or like Yes. okay, So we tried all the cases. So we have three cases here. In fact, yes, sir. one case is totally in English, the other case is totally in Hindi, and Yeah, then the other case is in mixed language. okay, okay, So people may start. We call it as code switch, code okay, switching problem. okay, So people may start writing in English, and then in between they can use Hindi word, or vice versa. They can start their tweet in Hindi, and then in between they can use English words. So we thought of, or we consider all those cases. okay. So we collected the data set. So tweet collection was not a very difficult one. In fact, we simply write a tweet by program, and crawling the tweets, we get almost 1% of the daily tweets by that program. So we had a huge volume of tweet. But the real problem was how to annotate the data set, because we were planning to have a supervised learning. So labeling was very important. Yes, So sir. for labeling, in fact, thanks to some of our BTech and PhD scholar Yes, who did all this work. yes, So I think we had at that particular time three BTech student and one of my PhD scholar who is also co-author of this paper, yes, yes, Dr. Abhinav.
So under his leadership, basically, under his supervision, I must say supervision, the BTech student and he himself also did all this sort of say leveling or identification of the words which are really the location names. And how we did is we had the text, and then corresponding to that text we wrote, if it is a location name, we put a value 1 for that. If it is not a location name, we put a value 0 for that. Although here it is shown Dhule, Sahapur, Dhule, so you can see here that Yes. there are in red color Dhule, Sahapur, and then in English the hashtag, this is also a place name, so Dhule. So there are 3 location references. Or this is like a target, I think multi-level. This is the target. Yes, Yeah. this is the target. What we want to identify by our system. Okay. So this way, because a lot of when we gather tweets, a lot of tweets came, but finally the tweets have to be filtered out because some of them may not be referring to the disaster events. Some of them may not be having proper location names and so on. So after filtering and pre-processing, we found that we had around 1942 tweets. Okay. Yeah. Your voice is gone, sir. Hello. Hello. Yeah. I can. Okay. So in those 1942 tweets, we have total 3093 location values. Yeah. Okay. And then the non-location names are total words, you can say, in those particular, including excluding the location words, there were the many words. One thing, that. sir, I want to ask. So there is 3,845 data set. So that data set is enough, like for the deep learning or like deep learning things like this. Yes, to some extent, and we had successfully did this one. So that was, although that was not sufficient, that may not be good amount, but that was enough for us in the model. लेकिन लाइक कि बेसिकली बात ये है कि जैसे डीप लर्निंग दिमाग में आता है, बहुत लोग बोलते हैं यार मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा सेट होना चाहिए. सो ये पेपर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यार ये कम डाटा सेट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं. तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? लाइक एवरीथिंग जो कुछ भी डिपेंड करता है, कोई भी, चाहे वो डीप लर्निंग हो या मशीन लर्निंग हो, अल्टीमेटली इट इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जिसको हमको ट्यून करना है. So since in this model, the deep learning model, what we used here is the number of parameters were limited one, because mostly we use LSTM, जहाँ पे number of parameters एक dense neural network की तुलना में कम होता है. Yes. In fact, dense neural network अगर इतना ही layer का बनाते तो number of parameters would have been in millions. Yes, but here we had little amount, and then with that, and since we use BiLSTM later on, so we had the tweet text is read from both the locations. So we had, in fact, it was able to capture the context of those words by good amount. So it was the system was trained. So ऐसा नहीं है कि हमको हजारों या करोड़ों में ही डेटा चाहिए. It depends कि इस तरह के केसेस में, क्योंकि लेबलिंग भी एक बड़ा इशू है. और आज के दिन लोग यही एक, इनफैक्ट किसी भी इस तरह के लर्निंग टेक्निक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कितना हमारे पास लेबल डेटा सेट. लेबलिंग हमेशा कॉस्टली होता है, क्योंकि लेबल कराने के लिए हमको या तो पैसा खर्च करना होगा या इनफ मैन पावर इकट्ठा करना होगा. और एक क्वेश्चन और था सर कि इसमें बहुत जगह पर POS टैगिंग यूज किया गया है. थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए. POS NER लाइक चीज यूज किए गए हैं जैसे. So this problem, in fact, sorry, I must have told it earlier also. Say this location name, this is a named, the place name is also a named entity. In fact, in natural language processing domain, we have a very popular word called as named entity references. Named entity reference identification. So बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, जैसे हमको किसी का नाम निकालना है, बिल्डिंग का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी इवेंट का नाम हो सकता है, तो उन सबको ट्रैक करके निकालना होता है. ये प्रायः हर वर्ड वाले या डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम में ये चीज दिखता है. कोई भी, से इफ इट इज अ स्पोर्ट्स, सो मेन प्लेयर्स के नाम, स्पोर्ट्स के नाम,
ये सारी चीजें निकालनी होती है अगर ऑटोमेटेड कुछ सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं। सो यस नेम एंटिटी रिकॉग्निशन इज अ वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम इन एनएलपी डोमेन, और उसके लिए बहुत सारे मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं। इनफैक्ट काफी रूल बेस्ड सिस्टम भी है जहां लोगों ने बना, और ये काफी पुराने मॉडल्स हैं। हम्म प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि उन मॉडल्स को जब भी हम डायरेक्टली ट्वीट पे यूज करते हैं, तो जो भी पहले के मॉडल्स हैं, स्टैंडर्ड रूल बेस्ड मॉडल्स या स्टैटिस्टिकल मॉडल, वो स्टैटिक अच्छा इंग्लिश के लिए बने हुए हैं, जहां पे इंग्लिश ग्रामेटिकली सही हो, सही है यस सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो। बट व्हेन वी केम टू, और व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ ट्विटर ट्वीट्स, ये सारे कंडीशंस नल एंड वॉइड हो जाते हैं। यस सर मतलब पीपल हम यहाँ ना तो ग्रामेटिकली सही लिखते हैं, बहुत सारे एब्रिविएशंस यूज करते हैं, और बहुत बार वर्ड स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोई मीनिंग नहीं रहता है। सो यस सर ऑल दो मॉडल्स हमने इसके पहले वाले पेपर में वो भी कंपेयर किया था। वी कंपेयर ऑल दोज एग्जिस्टिंग मॉडल्स आर एग्जिस्टिंग using models, rule based models, and that was not working very good for that. So that's why we had to go for a newer system. यस सर तो लाइक हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था, सो दैट्स वाई पिछले वाला कोई भी मॉडल काम नहीं कर रहा था, राइट? हाँ, ये एक्चुअली जब भी एक बार ट्वीट्स लेके काम करते हैं या सोशल मीडिया टेक्स्ट लेके, हम्म तो अगर कोई चीज ट्रेन किया हुआ है एकदम नेचुरल इंग्लिश के साथ, दैट मींस नोवेल्स या इस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स जहां पे इंग्लिश एकदम सही सही लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही है, उसका फ्लो सही है, तो वो जो मॉडल ट्रेन होता है वो एक स्ट्रक्चर देख के बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करेगा। हम्म बट यहाँ ट्वीट में वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, उसको बहुत सारे रॉन्ग वर्ड्स मिलेंगे, यस सर वर्ड्स जम्बल्ड अप होंगे, बहुत सारे इनफैक्ट एब्रिविएशंस होते हैं, तो खैर उनको तो हम प्री प्रोसेसिंग करके हटाते हैं, बट यस स्टिल सेंटेंस करेक्शन तो नहीं कर सकते हैं। यस So सर that's why for tweet, in fact, in all domain, now people are coming up with their own model or own embedding also. Later on, I will come to embedding. There also, I will explain कि tweet के केस में embedding अलग हो जाता है। यस सर दूसरा पार्ट था हमारा पीओएस, पार्ट हम्म ऑफ स्पीच टैगिंग इनफैक्ट। तो कोई भी अगर हम सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसके साथ एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन। या और किसी भी सेंटेंस में या किसी भी टेक्स्ट के काम में, because this part of speech tells a lot about that. So like if we talk about names, we by default you can understand these are going to be nouns only. यस सर So other part of speech tags are not going to be names at least. So if you think of sentiment analysis task, अगर sentiment analysis करने जाता है कोई, तो उस केस में एडजेक्टिव ही उसके टारगेट वर्ड्स होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव से ही पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है। यस So in almost all NLP related tasks, we have to do this part of speech tagging. यस सर So part of speech tagging से हमको वो मिल जाएगा। तो ये आइडिया लग यहाँ हम लोग नाउन के ऊपर ही मेनली कंसंट्रेट करेंगे। अगर कोई नाउन नहीं है तो शायद वो कभी आई थिंक नहीं होने वाला है। दैट मींस दे आर नॉट गोइंग टू बी नेम्ड इट। यस सर ओके देन सर अब नेक्स्ट जो है आप ये फिगर वन का ही कंसीडर करते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज प्री प्रोसेसिंग थिंग्स, लाइक आई हैव ओके। एक्सप्लेन दैट थिंग कि हमने जो पहला तो ये था कि हमने टारगेट को अपना डिफाइन कर लिया क्या क्या होने चाहिए, और प्री प्रोसेसिंग में मैंने इसमें देखा था कि कुछ कुछ जैसे कि हैश टैग जैसे गुजरात मतलब गुजरात जैसे है तो इसको हटा करके उन्होंने गुजरात बना दिया, क्योंकि हैश टैग बहुत लोग यूज करते हैं ट्विटर पर मेनली, राइट? हम्म। और क्या इसमें प्री प्रोसेसिंग में किया गया था मतलब? हमने हमने एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा कि इनफैक्ट ट्विटर अ लॉट ऑफ से दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स आर वेरी कॉमन। ये- स्ट्रक्चर ट्विटर का वो नॉर्म ही है। तो हम्म लोग उसमें किसी को टारगेट करते हैं तो एट द रेट सिंबल लगाते हैं। हम्म से लोगों ने टारगेट किया कि से किसी एनडीआरएफ की टीम को टारगेट करके लिखा, तो एट द रेट एनडीआरएफ टीम ऐसे कुछ लिखेंगे। हम्म कि लोग जब धुले शहर के बारे में लिख रहे हैं तो हैशटैग धुले करके शुरू कर दिया है, गुजरात के बारे में लिख रहे हैं तो हैशटैग गुजरात, उसके बाद उस चीजों के बारे में लिख रहे हैं। तो हम्म हमको लोकेशन नेम चाहिए था, इसलिए हमने हैशटैग हटाया। एट द रेट, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर आदमी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेटेड ट्वीट्स नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए हमने वो हटाया। उसके बाद इसमें बहुत सारे यूआरएल्स हैं, एज यू कैन सी इन दिस टेबल 3, कि जैसे http t को एंड सो
सो ये यूआरएल भी बहुत सारे उस इस पर्टिकुलर रिसर्च में हम लोगों ने यूज नहीं किया है. दिस कैन बी यूज्ड इन सम अदर सेंस. हम लोग इसको इमेज, यहाँ बहुत बार इमेज मिलते हैं और उस इमेज को लेके हम लोग दूसरे काम भी कर सकते हैं. यस So, सर. but here we removed all these things. So all these things. So this was done in pre-processing basically, and then we tokenize it. Tokenization means हर word को अलग-अलग करना. यस Then we padded it. Basically यहाँ padding का मतलब है कि to any machine learning or deep learning model we need to have a fixed length input. यस But it is not the case with Twitter. So what we did is we took the maximum size of the tweets which was available in our data set और उतना बड़ा हमने साइज फिक्स कर दिया. तो अब जो छोटे थे उसमें हम लोगों ने लास्ट में उन सब वर्ड के जगह 0 फिट कर दिया, so that Okay. they become equal. So that's why we padded it. Yes And sir. then this is the embedding part. So this Yeah. again needs some explanation. Yes sir. Embedding होता क्या है कि yes, so होता क्या है कि whenever जब भी हम कोई NLP नेचुरल लैंग्वेज टास्क लेते हैं, तो अगर हम वर्ड को बेसिकली हमारा न्यूरल नेटवर्क को कुछ नंबर्स लेके ही काम करेगा. हमारे पास है टेक्स्ट, तो हमको इस टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना है. यस तो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक सिंपल तरीका यह है कि हम इसको पूरे एक वोकैबुलरी बना ले और उस हर एक को पोजीशन वाइज वैल्यू दे. उस वोकैबुलरी बेस्ड पोजीशन में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे जीरोस आते हैं. यस सर. एक स्पार्स वेक्टर बनता है. स्पार्स हो जाता है. हाँ राइट. हाँ, तो उसी को दूर करने के लिए 2013 में एम्बेडिंग टेक्निक आया. एम्बेडिंग टेक्निक का आइडिया है इससे मेरा बिहेवियर कैसा है ये मेरे दोस्तों या मेरे बिहेवियर के बारे में अगर कुछ प्रेडिक्ट करना है तो मेरे Yes. दोस्तों को देख के लोग बता सकते हैं कि यस ये आदमी भी ऐसा ही होगा, इसके दोस्त ऐसे हैं. Never. सिमिलरली वर्ड, हम लोग जिस वर्ड के साथ वो आता है उसके आसपास के वर्ड्स को अगर हम देखें तो बता सकते हैं कि इसके बाद क्या वर्ड आना चाहिए या ये वर्ड किस किस सेंस में यूज होता है. यूज होता है. या राइट. तो उस चीज को एम्बेडिंग में कंसीडर करते हैं. सो एक तरह से अगर इसको मैथमेटिकली बोला जाए तो हमारे पास अगर वर्ड टेक्स्ट ये है TF-IDF वेक्टर है या काउंट वेक्टर है, उसको हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं या एक स्पेस में बदलते हैं जो कि फिक्स लेंथ का है, से 100 लेंथ का. तो यू कैन एज्यूम कि यहाँ एक 100 लेंथ का वेक्टर स्पेस है और उस 100 लेंथ में हर एक वर्ड का एक पोजीशन है. अब ये 100 कैसे आ रहा है ये डिपेंड करता है कि उसके नेबर कौन कौन से. नेबर कौन से हैं. यस तो इसमें होता क्या है कि जो एक वर्ड है उससे मिलते जुलते या उसके साथ आने वाले वर्ड्स उस स्पेस में आसपास पड़ते हैं. या राइट सर. तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी और ये वर्ड का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है. सो दैट वर्ड्स कैन बी यूज्ड. लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स है कि अगर हम बोल दे कि राजा माइनस अगर जेंडर कर ले इक्वल्स टू, तो वो रानी के से और प्लस फीमेल कर दे, से राजा माइनस मेल प्लस फीमेल कर दे तो रानी हो जाएगा. तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पॉसिबल हो जाते हैं अगर हम ले जाते हैं. या राइट सर. हमारे केस में और हाँ बताइए उसके बाद मैं पूछूंगा. हमारे केस में और एक इशू था कि एक लैंग्वेज का एम्बेडिंग हम कर सकते थे. यही सेम था मेरा. We had two languages, Hindi and English. So इसलिए क्वेश्चन भी था कि ग्लोब हमने क्यों यूज नहीं किया. ग्लोब इज वन ऑफ द पॉपुलर वन प्री ट्रेन एम्बेडिंग जिसको हम बोलते हैं. और प्री ट्रेन एम्बेडिंग यूज क्यों करते हैं इसका भी रीजन है क्योंकि ग्लोब जो है वो ग्लोब फास्टेक्स्ट ये सब जो है ग्लोब इज मेंटेन्ड बाय गूगल, फास्टेक्स्ट इज मेंटेन्ड बाय फेसबुक. ये लोगों ने काफी बड़े, इनफैक्ट गूगल का मुझे पता है, गूगल ने जितने भी आज तक लिटरेचर लिखे गए हैं इंग्लिश के उन सारे लिटरेचर्स को प्लस जो विकिपीडिया में टेक्स्ट अवेलेबल है उन सारे टेक्स्ट को लेके एम्बेडिंग मैट्रिक्स बनाया था, एक सिस्टम ट्रेन किया था. उतना हम अपने लोकल सिस्टम में नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई पीपल नॉर्मली गो फॉर दोस प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग. यस सर. लेकिन ग्लोब इज ओनली अवेलेबल फॉर इंग्लिश. कंप्यूटेशन हार्ड हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है. हमको उतना टेक्स्ट हैंडल भी नहीं कर सकते. हाँ ये भी है. फास्ट टेक्स्ट में दोनों ही लैंग्वेज की फैसिलिटी है. We can go with Hindi as well as English together. So इसलिए हम लोगों ने इसमें फास्ट टेक्स्ट यूज किया है because it was bilingual. बाइलिंगुअल. ओके ठीक है. तब तक BERT वगैरह काफी, मतलब उस समय जब हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो BERT had just started
in fact, to come into the market. It was not so popular, right? It is right now. So Yes, sir. इसलिए उस समय तक BERT वगैरह हम लोगों ने यूज नहीं किया था. It was the Fastex, that's what we used. ये सर, ये भी Obviously, क्वेश्चन था हमारा, हाँ, कि आपने बर्ड क्यों नहीं यूज किया, जो कि मोस्ट पॉपुलर अभी चल रहा है। या हाँ, क्योंकि ये जब काम हुआ था तो BERT आया था. आई एम नॉट यस, सेइंग कि BERT नहीं था, but it was not so popular, and how to use, what are the features, it was not very clear to us also. So now we are using it, BERT, in several other cases, but at that time we did not use it. यस सर, And then, sorry, and then we, in fact, all those tweet metrics, we used several. In fact, we tried with CNN, LSTM, BiLSTM, then BiLSTM plus attention and CRF, and then we got that with BiLSTM plus attention plus CRF, we got the best results. So that's why we told that our model, the trained model, is BiLSTM plus attention layer plus a CRF. सर इसके Now नीचे coming एक मॉडल मॉडल होगा, इसके नीचे है ना वो मॉडल, वो एक बार दिखाते हैं जस्ट, राइट, this one. या यस यस। सो आप ये So इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। here you can see what we did. So we had the words. So this is the output, in fact. यस सर, This is the input. So here we are giving our input after pre-processing and tokenization. The words are given to the LSTM layer after the embedding, and then they are passed through several LSTM layers. यस सर, So we went for bi-LSTM because some cases, no, you see here, like in this example, if you see, like if there is a word Jile or if there is a word like Thana, तो उसके पहले या उसके बाद में नॉर्मली ये चांसेस ज्यादा है कि लोकेशन रेफरेंस आएंगे. यस सर, राइट, राइट. लेकिन अगर इधर से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सिवाई पट्टी पहले आएगा फिर थाना आएगा. या If we go in a reverse way, then probably we can see कि थाना और उसके बाद सिवाई पट्टी आएगा. So यस, that's why bi-LSTM, in fact bi-LSTM दूसरे तरफ से पढ़ता है. बहुत बार नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है कि कुछ चीजें अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका रियल मीनिंग थोड़ी आगे जाकर पता चलती है. बहुत बार ऐसा होता है. So that's why bi-LSTM is always a better way if we have a text document. दोनों तरफ से हम टेक्स्ट को पैरेलली पढ़ रहे हैं. So that's why we went for bi-LSTM, in fact give the good result. यस सर, और लास्टली हम लोगों ने यहाँ से भी हम प्रेडिक्ट कर सकते थे. इनफैक्ट किए हुए थे हम लोग. द रिजल्ट वाज नॉट बैड आल्सो. इट वाज मोर और लेस सिमिलर, बट देन वी फाउंड दैट ओके, लेट अस यूज सर्टेन कंडीशनल रैंडम फील्ड. कंडीशनल रैंडम फील्ड यूज करने का कारण अगेन वही था कि, एक बार सर ये एक्सप्लेन कर देते होता क्या है कंडीशन, बहुत लोगों को ये पता नहीं हाँ, है वही कंडीशन बता. क्या है। कंडीशनल रैंडम फील्ड एक्चुअली ये एक मार्कोवियन मार्कअप नेटवर्क का एक, यू कैन से एडवांस वर्जन है. इट इज बेसिकली, पॉपुलरली अगर बोला जाए तो इट इज मार्कअप रैंडम फील्ड होता है. मार्कअप रैंडम फील्ड का ये एक एडवांस वर्जन है. इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी एक वर्ड को कंसीडर करते हैं, अगर उसके उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर इसको कंडीशन करते हैं. जैसे से गिवन, we want to find a probability of y given x, and now this x is some sequence information. उसके आसपास के जो वर्ड है उनको भी हम कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं. सो एक वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में कितने वर्ड हैं उनके ऊपर उसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये रियली में ये लोकेशन नेम हो सकता है या नहीं. सो that's basically the conditional random field. I Yes. hope this is basically a mathematical term, to Yes, be sir. very honest. और इसके लिए मार्कोवियन प्रॉपर्टी, बेसिकली इट्स अ मार्कअप नेटवर्क ग्राफिकल मॉडल जिसको हम बोलते हैं. Yes, और sir. वहां से हम इसको कंडीशन करने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं. इसलिए एज यू कैन सी हियर, फॉर एवरी वर्ड वी आर प्रेडिक्टिंग टू वैल्यू. लेट मी जस्ट see here, the Yes, sir. output is, for every word we are outputting two values. One is what is the probability of location being location name, and what is the probability of not being a location name. So हर एक वर्ड के लिए हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो है कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये लोकेशन नेम है और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये लोकेशन नेम नहीं है. एंड दिस इज फॉर एवरी वर्ड यू कैन सी. Okay. अगर ये कंडीशनल रैंडम फील्ड यहाँ नहीं होता तो नॉर्मली हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वर्ड है. अगर या सिग्मॉइड नहीं. फंक्शन यूज करते तो ये है या नहीं है. सो देयर वुड हैव बीन जस्ट वन प्रोबेबिलिटी. Okay. Got the point. ओके. Yeah. ओके, सो तो सर अब एक मेन जो क्वेश्चन इसका आता है कि जो बहुत लोग एक्सपेरिमेंट में फंस जाते हैं,
एक्चुअली सर टाइम अप हो रहा है, आप अपने तरफ से बढ़ा सकते हैं इसको क्या, मतलब? नहीं जी, हम लोग के पास भी इसका ये नहीं है कुछ। अच्छा, तो फिर आप एक लिंक मतलब मैं तो, मेरे तो 10 मिनट के बाद लिंक जनरेट हो पाएंगे, फिर आप एक लिंक जनरेट करके सेंड कर सकते हो मेरे को तो, जल्दी से तो। मिनट। क्योंकि अब चलिए, मेन चीज हम लोग इसका मैट्रिक्स इवैल्यूएशन और मॉडल कहाँ से करते हैं लिंक जनरेट वगैरह? ये सर। मीटिंग इन्फो, तो ये रनिंग कंडीशन में ही हो जाएगा। ये सर एक बार ट्राई कर सकते हो, 12:30 का कर दो ना वो, 12:30 से स्टार्ट, 12:30। एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं है जूम में। अच्छा, ये 10 मिनट हमारे पास है सर अभी भी, है ना? बहुत है, 10 मिनट इज सफिशिएंट। ओके, तो फिर हम करते हैं जल्दी से ये मुझे थोड़ा सा समझना था कि बहुत समय हम भी जब काम करते थे आपके साथ, तो हम पाते थे कि एक्सपेरिमेंट करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में, जैसे कि कितना हम लेयर्स लगाएंगे मॉडल का और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली हम स्टक हो जाते हैं। तो इससे कैसे निकल सकते हैं लोग, लाइक कि कैसे स्टार्ट करने चाहिए मॉडल बनाना और क्या प्रोसेस होता है? See, the obvious way is that the models will always be the simpler one. So start with a simple model. Don't go with और ऐड एक ही बार के हम 10 लेयर ऐड कर देंगे। वैसे भी LSTM में बहुत ज्यादा लेयर नहीं ऐड करते हैं, नहीं ऐड करते हैं। उसका कारण होता है कि LSTM इट itself is a very means both way normally अगर जा रही है, एक वे भी अभी अगर देखें तो LSTM में अगर 100 नोड है तो वो प्रोपागेट होता है पूरा का टाइम, पूरा लास्ट नोड से फर्स्ट नोड तक। ये सो सर। दैट्स व्हाई उसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स के प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए उसमें तो वैसे भी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा लेयर नहीं यूज करना चाहिए। ये अच्छा। रहा बात जैसे अगर CNN भी यूज करते हैं तो आज के दिन में है से पीपल हैव ट्राइड विद इवन 200 300 लेयर्स आल्सो, but most of the time you start with, if you have a problem you start with say 3 4 2 3 layers, see how it works, and then you decide कि अगर हम एक्यूरेसी मेरा हमेशा कम आ रहा है, डेटा को थोड़ा चेंज करके ट्रेनिंग टेस्टिंग सैंपल को थोड़ा बदल के देखें, तो फिर उसके बाद डिसाइड करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेनिंग टाइम में जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसमें जो वैलिडेशन दे रहा है वो 90% दे रहा है, लेकिन जब हम टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं तो मेरा रिजल्ट 70% ही आ रहा है। ये एक बहुत फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम होता है। तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स है। सो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। सो या तो लेयर कम करें या फिर उसमें हम कुछ ड्रॉप आउट ऐड करें, क्योंकि मॉडल इज बिकमिंग अ ओवरफिटेड मॉडल। ये सर। सर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसके लिए आपने मैट्रिक्स जो यूज की F1 स्कोर यूज किया है, राइट? हम्म। ये सर, तो इस पर I कुछ बोल think पाएंगे क्या there एक्यूरेसी? were 3 4 cases were there. लास्ट पे। हाँ, this is the result. ये तो दूसरे का है। Okay, this is what we used. सो इनफैक्ट इसके पहले वाले काम में हम लोगों ने, let me just show you, remaining time still 6 months is, so मेट्रिक, हाँ क्या वो F1 पे कुछ बोल रहे थे? कि F1 स्कोर आपने जैसे कि यूज किया था, मतलब तो मैं ये पूछ रहा था कि एक्यूरेसी क्यों नहीं, मतलब F1 स्कोर क्यों, मतलब? नहीं, इसमें एक्यूरेसी भी है ना। अच्छा, एक्यूरेसी नहीं दिया हुआ है। अच्छा। एक्यूरेसी वाज कैलकुलेटेड, नो डाउट एक्यूरेसी ओके। वाज कैलकुलेटेड। इनफैक्ट मोर देन एक्यूरेसी, इसके पहले वाले पेपर में जैसे दिस इज वन ऑफ आवर अर्लियर वर्क, जिसके बेसिस पे हमने ये दूसरा ये हमने किया था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर। ये ठीक। 2019 का पेपर है इनफैक्ट। ओके। तो इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा दिया था। जैसे यू कैन सी है, जो हम लोगों ने मैट्रिक्स यूज किया था, ये सारे मैट्रिक्स यूज किए थे। ओके, हैमिंग। कितने? ओके। precision, recall, F1 score, Hamming loss, Jaccard similarity, exact matching। ये इसका रीजन था हम लोगों का यूज करने का, कि जैसे हम लोग जब बोलते हैं लोकेशन से, इसमें क्या रीजन है मैं बता रहा हूँ क्या है। यस। कि जैसे ये है, अब यहाँ पे 1 2 3 लोकेशन नेम था,
यस सर। हम सिर्फ अगर एक्यूरेसी यूज करेंगे तो क्या होगा, बहुत बार कि ये एक या दो को भी अगर ये ट्रिक किया है, तीसरे को नहीं लिया, तो हम्म। भी वो बोलेगा कि हाँ कुछ परसेंटेज तो ये एक्यूरेट है। यस सर, या। लेकिन राइट। ये यहाँ पे ये अलग अलग है, दिस इज ओके। बट बहुत बार जैसे कुछ नाम होता है जैसे न्यूयॉर्क, हम्म। उसमें अगर दोनों वर्ड नहीं लिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। इट हैज टू अंडरस्टैंड दैट न्यूयॉर्क हो सकता है स्पेस हो, लेकिन उन दोनों वर्ड्स को एक साथ फेच करना है, तब ये कंप्लीट लोकेशन नेम बनाएगा। यस। इसीलिए हम लोगों ने एक अलग मेट्रिक यूज किया था, एग्जैक्ट मैचिंग, कि एग्जैक्टली मैच करता है कि नहीं। अगर गुड। किसी में 5 लोकेशन नेम है तो पांचों आना चाहिए। तो आ जाए। किसी में अगर 3 है तो इसीलिए यहाँ एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं रह जाता है। यस। F1 प्रिसीजन इसलिए हम लोग निकाल रहे थे कि प्रिसीजन हम लोग यहाँ ये मेजर करना चाह रहे थे कि जितने लोकेशन नेम वो प्रिडिक्ट कर रहा है, उसमें से रियली सही में कितने लोकेशन नेम है, क्योंकि वो बहुत बार दूसरे वर्ड को भी बता देगा कि लोकेशन नेम। ओके। और और रिकॉल का मतलब था कि अगर 100 लोकेशन नेम है तो उसमें से वो कितने को आइडेंटिफाई कर पाया। हो सकता है कि 100 में से वो 90 को ही आइडेंटिफाई कर पाया लोकेशन नेम, 10 लोकेशन नेम वो कभी प्रिडिक्ट नहीं किया। ओके। तो फॉर दैट इट वाज अ रिकॉल वैल्यू। और F1 स्कोर बेसिकली इन दोनों का एक हार्मोनिक मीन होता है, जस्ट यस। टू राइट सिंगल फिगर। यस। Better one is this exact matching एग्जैक्ट and मैच Descartes, में। right? और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अब टाइम तो हमारा हाफ हो रहा है। क्या है इसका फ्यूचर स्कोप इस पेपर का? ये सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि फ्यूचर स्कोप, अगर कोई बंदा काम करना चाहे इस पर तो क्या, कैसे चालू करे, स्टार्ट करे, और क्या कैसे आगे बढ़े? से ये तो हर कोई जानता है कि जैसे अभी हम लोग इस तरह के काम को बहुत सारे मीन्स लोकेशन नेम आइडेंटिफाई करना, ये तो सिर्फ लोकेशन नेम था। जैसे हम लोग कुछ प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में भी ट्राई कर रहे थे, हम्म। पब्लिक प्रोटेस्ट है या किसी तरह का प्रोटेस्ट है, तो इवेंट प्रिडिक्शन कि हम्म। क्या होने वाला है, कितने लोग आ सकते हैं, इस तरह की चीजें इस तरह के बेसिस पे बनाया जा सकता है। जैसे कोई प्रोटेस्ट होना है, उसका एक नाम है, किस जगह पे होगा, कितने लोग उसमें एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, so that the government or any organization can be prepared for those sort of event to tackle how to tackle all those things. So ये तो नेचुरल डिजास्टर के बारे में था। मैन मेड डिजास्टर्स के भी इस तरह के सिनारियो हो सकते हैं। यस सर। बहुत सारे लैंग्वेजेज इश्यूज हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट इतने सारे लैंग्वेज हैं, तो दूसरे लैंग्वेज के लिए भी ये कर सकते हैं। इसी तरह के केसेस को वर्ड्स में भी हम लोगों ने किया था, ऐसे स्पीच में, कि स्पीच का अगर कोई इशू है, लोग कोई बात कर रहा है, तो वहां से वो कीवर्ड आइडेंटिफाई करना कि ये लोकेशन नेम्स है। यस। उसका बहुत सारा, जैसे स्पैम कॉल के लिए हम लोगों ने यूज किया था, बहुत सारे स्कोप है। तो यस। easier one to go with, if someone think of starting, so take another language, find some tweet, start with like Bengali, Udiya, Marathi, or any South Indian language, Telugu, Tamil, Kannada, because these things are very frequent everywhere. So this has to be done. हमारे पास अब 1 मिनट बचे हुए हैं, तो थैंक यू सर। और हम नेक्स्ट पेपर में भी अगर आप अच्छे कोई मतलब आपसे बात होगी, और नेक्स्ट पेपर भी आपसे हम मांगेंगे और अच्छे Sure. डिस्कशन के लिए। और हम सोच अगले बार ये थोड़ा इसका अपग्रेड करके मांगेंगे ताकि और एक्सटेंड हो सके अच्छा डिस्कशन। आप अपना Thank बताओ। you. It was really nice after a long time talking to you यस। and discussing this research. In यस। fact, this is humanitarian. मेरा यही मानना है कि research, most this was a complete research work we did. We did a lot of work on this, and still I feel that disasters, man-made or all this. So this social media has a lot of potential to be used in all those cases, and I hope a lot of people will be using or will be predicting building models for that. ओके सर, थैंक यू अलॉट। And if anyone is interested in doing work, we are very open to share this data set if anyone wants it. ओके। सो We can in fact send you the link also if needed. आई विल पोस्ट योर मेल ऑन द Sure, sure. वीडियो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, thank you, Gopal. Thank you. Bye. थैंक यू सर। बाय। थैंक यू So, सर। still बाय। going on?